these are the topics that will be covered in this session of Advanced Java. That is exception handling, collection framework, file handling, serialization, multi-threading, generic, new features, servlet and all. Then we had seen that in the interview it is very important. Questions are generally asked from the Advanced Java. In the exception handling part, we have seen error, type of error, exceptions. We will just go through this. The errors, two types of error, compile time, runtime. Then we have seen example of the compile time error, and we saw that what are the mistakes that may So, cause for the yes. sir, I have a question. Yes. What is incompatible type, sir? Incompatible type means for every variable in Java you are giving a data type. For example, uh, I will show you here. One second, I will share my screen the Eclipse one. I will show you with example. See, for every variable, I will see any one of this. See, for every variable, we have some data type, and that data type contains value of a related type only. For example, if we have a data type of int, it can store only numeric value, only integer value. If we have some variables like string or anything, it can store string type variable. Okay. So if inside the int data type, if we are storing a string value, then it may cause for incompatibility of data types. इन लेमन लैंग्वेज सीधी सी बात यह है कि मेरा जो डेटा टाइप मैंने असाइन किया है उसे, अगर मैं उसमें उस डेटा टाइप के अलावा कोई और वैल्यू स्टोर करूंगा तो वो इनकम्पैटिबल डेटा टाइप के अंदर आएगा। मंतसा, इज इट ओके या कुछ और एक्सप्लेन Yes, sir. करना है? Yes, sir. No, sir. It's okay. ठीक है, ओके। Okay, so later on we have seen that what are the runtime errors and what may be the reason of a runtime error. Then we have seen the example of runtime error. Then we had seen exceptions. What is exception? If, what are the abnormal conditions that may rise and cause for an exception? And we had seen that what are the techniques that we can use for handling exceptions. Then we were studying about the common Java exceptions, and we had listed out exceptions like arithmetic, array index of bound, array store exception, file not found, IO exceptions, null pointer, number format, out of memory, security exception, stack overflow, string index of bound exception. You must remember these type of exceptions in your mind. No, it's not necessary to by heart this, इसे बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना है, बस समझना है इसे कि कौन सा एक्सेप्शन जो है वो किस तरह का है, और हर एक का एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल अपने माइंड में रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था अरिथमेटिक एक्सेप्शंस लाइक डिवाइड बाय जीरो एग्जाम्पल। Then array index out of bound exception, that if we are having some arrays and it has some length। वन सेकेंड, क्या हुआ किट्टू? चलो चलो चलो, क्लास कर रहे हैं।
Sorry for the interruption. So we were looking for the arithmetic exceptions and what may be the regions of this kind of exception, how we can generate it. Then we have seen array index out of bound exception, array store exceptions, then file not found exception. So we had studied role and importance, and we are studying exception handling. Inside this, errors, type of errors, exceptions, these all we had completed. Now we'll move to the next class. But before moving to the next class, may I ask you some questions? Just a few that we had already studied in the last class, just for 5 minutes. Uh, Anshumali, hello. Yes, sir. Uh, Anshumali, what are the different types of errors? So there are two types of error: runtime error and compile time error. Perfect, good. Next is Vaishnavi. Vaishnavi, Yes, sir. what is a compile time error? Sir, an error which generates during the compilation is known as a compile time error. Good. And next is Hemant Yadav. Hemant Yadav. Kuldeep Kumar. Yes, sir. Kuldeep, what is a runtime error? So runtime error is basically that type of error which occurs in a runtime when we put some matlab input and it may occur some errors. Okay. I think so. Okay, it occurs basically runtime. Yes, sir. Okay, okay. Malini. Yes, sir. Okay. So what are the different type of inbuilt exceptions in Java? At least three. At least three you have to say. Sir, arithmetic exception, Okay. array index out of bound exception, Okay. and file not found exception. File not found exception. Perfect. Mantasha. Yes, sir. नेक्स्ट थ्री मैम आप बताइए. सर जो मालनी बोली मेरे को वही याद है. नो इशू, आप रिपीट कर सकते हैं, बस आपके लिए और कोई नहीं. नेक्स्ट टाइम से सभी याद करेंगे, माइंड में याद कीजिए नेक्स्ट के लिए. मनसा बताइए कोई थ्री. Array out of bound exception, file not found exception, and arithmetic exception. ओके परफेक्ट. मुस्कान नेक्स्ट थ्री. Yes, sir. नेक्स्ट IO नेक्स्ट. exception ओके and class not found exception, and one is null point exception. ठीक है. प्रीतिशा नेक्स्ट. Array store exception, array index out of bound exception, file not found exception, null pointer exception. ओके गुड. राजू नेक्स्ट थ्री एक्सेप्शन. File not found exception. Okay. Folder not found exception. And index out of bound exception. Okay. Next is Ramesh Yadav. Seetal. सर निरुपम बोल रहा है उसको इन ले लीजिए. इन कर दिया उसे. शीतल. ओके. विकास यादव. विकास यादव. Yes, sir. I am presenting here. Okay, okay.
So Vikas, if we are dividing any integer value by 0, what exception will occur? Sir, once repeat in Hindi, sir. If we are dividing any integer value by 0, Yes, sir. suppose 5 by 0, so which 5 by exception 0. will 5 divided by 0? ओके, सो इसको शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो 5/0, 5 को 0 से भागा किया, तो इसे फिर क्या एक्सेप्शन आएगा इसमें? Sir, we can say that infinite or 0. No, what kind of exception will occur? Section we don't know, sir, basically. Okay, no issue. Anyone? Okay, sir. Anyone who want to say? So Arithmetic arithmetic exception. exception. Yes, arithmetic exception will get. Okay, so we had seen some programs till file not found exception, I think. Yes, file not found exception. So today I think we must do some practical work, and we'll see one by one. So first one, we were looking for the arithmetic exception. Okay, see, we were talking about this. If we'll run this, see, we got arithmetic exception here. Okay, and it is clearly indicating that it is being caused divide by 0. अगर आप किसी नंबर को डिवाइड बाय 0 से करते हैं, देखिए यहाँ we are dividing with b minus c. Okay, so what we can do here is, just for clarity, we'll store it inside some value, and then we will use directly d, and this d we can print here. Okay, so see, the value of d is 0, and we are dividing the integer number a, which is having value 10, with 0, and it shows the arithmetic exceptions. Is it okay? Shall we move next? Yes, Yes, Vaishnavi. sir. Yes, Vaishnavi, you want to ask something? No, sir, Gulti, sir. Okay. Next is array index of bound exception. See, we are having an array with some value. एक array है हमारे पास int, जिसका डेटा टाइप है, इसको असाइन किया नेम, मैंने एक वेरिएबल नेम दिया नंबर्स, इसमें कुछ वैल्यू मैंने स्टोर किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसलिए दिया है, सो दैट आपको इजीली एक काम करते हैं, इसे 0 से शुरू कर देते हैं. ठीक है, 0 तो इंडेक्स है, अब ये वैल्यू चेंज हो सकते हैं. तो अभी अगर मैं ये रन करता हूँ, ठीक है, देन रमेश यादव, आई थिंक कुछ लोग ना ज्वाइन करके छोड़ देते हैं क्या? देखिए ऐसे तो नहीं फिर सर. ऐसे ज्वाइन करके कोई फ़ायदा नहीं है, देखिए, है ना. खैर, विकास आप बताइए, अभी जो है यहाँ पे एरर अकर होगा या नहीं? कहाँ पे सर? अभी आपके सामने स्क्रीन पे देखिए. यस सर, देख रहे हैं. ठीक है, तो क्या आएगा इसका आउटपुट? आउटपुट सर अभी तो प्रोग्राम भी अच्छा से नहीं कर रहे सर, थोड़ा गड़बड़ा जाता है, मतलब कोई बात प्रोग्राम नहीं. करते हैं ना तो देखिए, नहीं होता ये है. एक क्लास है जहाँ आप सभी और हम जो हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, कोई ना तो बहुत ज़्यादा जानता है,
ना तो बहुत ज़्यादा कम जानता है, ऐसा सोच के चलना है। ऐसा ही सोचना यस है सर। कि सभी इक्वल कैसे? जानते हैं, या तो कोई नहीं जानता या सब कुछ जानता है। तो ये सोचकर आप बस गेस कीजिए। नो वन इज परफेक्ट इन वन गो, हमेशा याद रखिए, नो वन इज परफेक्ट इन वन गो, बट ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये याद रखना है। अब बताइए। देखिए ये नंबर्स में 10th इंडेक्स पे मैं गेट कर रहा हूँ। सो 10th इंडेक्स पे क्या होगा? फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th इंडेक्स मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है। सो अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, देन सेव करना है, अच्छा सेव करना है, ठीक है। सो इफ विल रन दिस प्रोग्राम, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज, ठीक है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है। अब अगर मैं इसे कर दूं 9, अब क्या होगा? अभी बताएंगे वैष्णवी। Yes, अभी क्या होगा? sir, ये रन करेगा। ठीक है। 10th इंडेक्स पे इसने दिया है 9 की वैल्यू। अब अगर मैं अब क्या होगा यहाँ पे, ये बताएंगे। अभी भी 9 ही प्रिंट करेगा। तो इस तरह से ना आपको घर पे जो है प्रैक्टिस करना है। ठीक है। आपको जो है घर पे ये इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए चलना है। यानी आप एरे को डायरेक्टली इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, और उसके इनसाइड में आप एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। उस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के बाद ये इंडेक्स बनाएगा और उसके बेसिस पे वैल्यू रिटर्न करेगा। सो ये एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन है। एक एरे लेना है, उसमें उस इंडेक्स को गेट करने की कोशिश करना है जो अवेलेबल है ही नहीं उसमें। सो विल गेट एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है। नेक्स्ट करें। इसमें और कुछ, ये आप लोग को रन करके देखना है एक एक करके, ठीक है। और यस सर। जब आप क्लास कर रहे हो ना, तो अपना शॉर्ट नोट्स बनाने का कोशिश कीजिएगा। वेरी शॉर्ट, नॉट इन लॉन्ग, वेरी शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा अपने पॉइंट्स में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड का देख लिया ना। अगला है एरे स्टोर एक्सेप्शन। सी सर एरे, हाँ यस। सर कल अटेंडेंस के लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। अटेंडेंस के लिस्ट में आपका नाम नहीं है? एक मिनट देखने के लिए। विकास तो लिखा था मैंने, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं, आपका है, मेरे पास जो अटेंडेंस मेंटेन है उसमें है आपका नाम। विकास यादव बात कर रहे हैं ना आप? यस सर। हाँ है, कल के लिस्ट में है। मैं एक बार दोबारा शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओ, सो दिस इज ओ, एरे स्टोर एक्सेप्शन। एरे स्टोर एक्सेप्शन क्या है कि अगर हम इनकम्पैटिबल डेटा टाइप को स्टोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आइए ट्राई करते हैं इस पे। ठीक है। इसने देखिए इनकम्पैटिबल डेटा टाइप दिया। अब अगर मैं एक काम करूं कि मैं इसे कर दूं स्ट्रिंग, अभी क्या होगा? अभी बताएंगे मालिनी। यस सर। अभी क्या होगा इसमें? कोई नहीं, ट्राई कीजिए, देखिए जरूरी नहीं कि आप सही सर इसमें बताएं। कोई एरर तो नहीं आना चाहिए, मतलब एक बार फिर से ये वाला एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ये ऑब्जेक्ट का आप एरे बनाए हैं, हम्म, और ये ऑब्जेक्ट एरे इसको टू यूज स्ट्रिंग क्लास। सर इसमें वो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एक्सेप्शन आ सकता है। नहीं क्यों आएगा? हम लोग एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड पे नहीं, एरे स्टोर एक्सेप्शन पे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड का नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने इंडेक्स ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि जीरोथ पे हम कर रहे हैं, और जीरोथ अवेलेबल है क्योंकि 5 का साइज है। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, अगर ये नीचे क्या मैसेज प्रिंट हो गया, इसका मतलब है कि कोई एरर नहीं आई। ठीक है।
करते हैं रन इसे। अब अभी हम लोग इससे पहले देखिए हम लोग का ये था, ठीक है, ये था जब हम ये ट्राई कर रहे थे हम लोग, देन वी वर गेटिंग, देखिए ये मैसेज प्रिंट नहीं हुआ था, एंड वी वर गेटिंग एरे स्टोर एक्सेप्शन। व्हाई? बिकॉज दिस एंड this is totally different types. It is asking for integer, and what we are storing at 0 index is a string value. But if we'll convert it to string, so now the compatibility issue has gone. It is string asking for string, and we are providing string variable. Here we go. Okay, it reached successfully. हाँ, अब बताइए क्या confusion थी? सर एक्चुअली हम वो आप स्ट्रिंग पे चेंज किया, मतलब वो इंटीजर स्ट्रिंग वाला पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। अच्छा कोई अच्छा, बात नहीं, कोई अब नहीं, क्लियर हो गया। अब क्लियर है ना? ठीक है, ये सारा क्वेश्चंस आपको जो है, ये जो प्रोग्राम है आपको रन करके देखना है घर पे। इसके लिए आप लोग अब बड़े हो चुके हैं, ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, सो आपको कोई प्रेशराइज नहीं करेगा बच्चे की तरह। आपको अपना अच्छा बुरा खुद ढूंढना है। फॉर ऑल स्टूडेंट्स, दिस मैसेज इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स, आपको खुद से करना है, ठीक है। रन करके देखिएगा प्रोग्राम 1 बाय 1। हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज स्टोर एक्सेप्शन हो गया, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। सी फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, इसमें क्या किया हम लोगों ने, कोई एक ऐसे ही कोई एक फाइल ले लिया, ठीक है, unknown file .txt, and we are trying to read that file, ठीक है। तो अभी बेसिक जावा में आप लोगों को फाइल हैंडलिंग वगैरह बताया नहीं गया है ना? No, sir. अच्छा ठीक है, कोई नहीं। सो बेसिकली दिस कोड एक्सप्लेन्स हाउ वी कैन रीड ए फाइल। एक फाइल को रीड करने का तरीका है, ठीक है। तो उसको पहले लोड करना पड़ता है फाइल रीडर के थ्रू। यस, समवन हैज रेज्ड हैंड। ओके, सो जब फाइल रीड करने की कोशिश करते हैं और अगर ये फाइल अवेलेबल ही ना हो, सो विल गेट फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। लेट्स चेक। ओके, वी आर गेटिंग फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ करेक्ट पाथ दें, लाइक C// लेट मी चेक इफ वी आर, ठीक है, यहाँ पे आपको करेक्ट पाथ देकर देखिएगा। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप इस तरह से दीजिएगा कि सी ड्राइव में कोई फाइल है या नहीं। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो उसके लिए अलग तरीका है करने का, ठीक है, ये विंडोज के लिए है। इस तरह से आप देकर देखिएगा, पाथ अलग अलग तरीके का गेट कर सकते हैं आप लोग। इस पर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट इज टिल फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, वी हैव सीन टिल फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। सो आज की क्लास में अब हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है IO एक्सेप्शन। वी आर गोइंग टू डील विद इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस, एरर्स दैट आर रिलेटेड टू आइदर इनपुट और आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशंस। हम लोग कोई भी ऑपरेशन ऐसा कर रहे हैं, चाहे वो फाइल बेस्ड हो, चाहे वो नेटवर्क में हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हो फाइल्स को, डेटा स्ट्रीमिंग वर्क कर रहे हो, तो इनपुट और आउटपुट करते वक्त इफ़ एनी फेल्योर अकर्स, अगर किसी तरह का फेल्योर आता है, then what we will get by Java is IO exception. It's a part of java.io package. We know that in Java, basically the class file or the inbuilt jar files are stored inside some packages. So java.io package is there, and which contains IO exceptions class. It's a type of checked exception. See, this is a very important question for the interview. Generally, it is asked that what is the difference between the checked exceptions and the unchecked exception. यानी इंटरव्यू का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इट इज गारंटीड दैट इन द कमिंग मॉक इंटरव्यू दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि चेक्ड एक्सेप्शन और अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है। चेक्ड एक्सेप्शंस बेसिकली वो होते हैं जो जिन्हें हम हैंडल कर सकते हैं प्रोग्राम कोड में, ठीक है, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करके, एंड इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम java.lang.exception class. java.lang.exception is the topmost, is at the topmost in the hierarchy of exceptions.
and next one is unchecked exceptions which are not essentially to handle in program. These are the runtime exceptions. It is handled by the JVM. अभी देखिए इसको देखते हैं. नेक्स्ट आयो एक्सेप्शन का डेमो देखते हैं. ठीक है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन का सेम यूज कर सकते हैं हम लोग जो अभी हम लोगों ने फाइल नॉट फाउंड का किया था कि अगर मेरे पास कोई एक फाइल है एंड वी आर ट्राइंग टू रीड सम डेटा फ्रॉम दैट फाइल एंड इफ दैट फाइल डज नॉट एग्जिस्ट वी विल गेट इनपुट आउटपुट एरर. इसको देखते हैं हम लोग. ठीक है, ठीक है, यहाँ देखिए व्हाट वी आर ट्राइंग इज वी हैव टेकन अ फाइल, वी हैव tried to read this file and stored in the buffered area, and then we are trying to read content of that file. So what it will give? It will give an input output exceptions. Why? Because we have not given any correct path of this file. See, an input output occurred, non-existent file, the system cannot find the file specified. अभी आप लोगों में से मुझे एक बात बताइए कि ये एरर किस लाइन नंबर पे आया है. एक मिनट. मैं जिनसे पूछूंगा केवल वही जवाब दीजिएगा प्लीज. ठीक है, ऐसे ही प्रोग्राम करते वक्त ना मॉडिफाई करके आप देखिएगा तो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा. सो अभी इसको रन करके देखते हैं. ठीक है, शीतल क्या प्रिंट होना है यहाँ? विजय, let's run and see. One only. It means the error occurred at which line? Sir, number 13 line. Number 13 line. But in the number 13 line, two operations are being there. One is we are creating object of buffered reader, and another one is we are creating object of file reader. सो कहाँ पर ये एरर आया है? बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त या फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बनाते वक्त? शायद फाइल रीडर. तो फाइल रीडर. ठीक है, गुड. सो पहला एक्सेप्शन जो है आपका यहीं पे आ गया क्योंकि इसको ये फाइल नहीं मिलना है. ठीक है, ये था आपका इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस. सो टिल नाउ वी हैव सीन इनपुट आउटपुट एक्सेप्शंस. नेक्स्ट इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन. अब थोड़ा नल पॉइंटर एक्सेप्शन के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है. एक डेवलपर की लाइफ को हेल बनाने के लिए ये अकेला नल पॉइंटर एक्सेप्शन काफ़ी है. अब तक आप जब भी आईटी फील्ड में वर्क करेंगे जो एक्सेप्शन आपको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है वो ये है नल पॉइंटर एक्सेप्शन. ठीक है, एंड टिल जावा 8 ये बहुत ज़्यादा परेशान करता था. जावा 8 के बाद फिर भी इस पर काफ़ी ध्यान दिया गया और इसके जब हम फीचर्स देखेंगे न्यू फीचर ऑफ जावा तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. बट डेवलपर की लाइफ को सबसे ज़्यादा हेल्प बनाने में इसका ही हाथ है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन का. नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करना भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है. ठीक है, बेसिकली जब भी रन टाइम में आपका अच्छा नल पॉइंटर एक्सेप्शन का मतलब देखिए नेम में ये स्पेसिफाइड है. वी आर पॉइंटिंग समथिंग विच इज नल. नल मीन्स नॉट एग्जिस्टिंग. सो एनी ऑब्जेक्ट विच इज नॉट एग्जिस्टिंग इन मेमोरी and we are trying to access them or we are trying to perform any kind of operation to them may couch for a null pointer exception. ठीक है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई इसका मेंबर जिसको हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक्सेस करें या उस पर कुछ मैनिपुलेशन परफॉर्म करें. मैनिपुलेशन क्या हो सकता है? जैसे अगर मेरा एरे लिस्ट है तो उसका मैं साइज गेट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन. मैं उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ.
मैं कोई एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, उसमें मैं कोई वैल्यू सेट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। ठीक है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सेस इज, मैंने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने उसको इनिशिएट नहीं किया, इनिशलाइज नहीं किया, और मैं अभी उस पर नल वैल्यू ही असाइंड है, और मैं उसमें से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ किसी वैल्यू को, उसके किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से। सो अगर ये नल असाइंड है उसको, तो उस केस में ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। ठीक है, इनिशियल लेवल पे आपको ये याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका रेफरेंस अभी अवेलेबल नहीं है एंड इट इज बीइंग रेफर्ड बाय नल मीन्स नथिंग, सो इट मे काउच फॉर नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन का एक एग्जांपल अभी हम लोग देखते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा ये। सी, we have a variable of type string, data type string, the variable name is text, and what we are trying to do is इस टेक्स्ट का हम लोग लेंथ गेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि नल को रेफर कर रहा है और उस पर हम किसी भी तरह का एक्सेस या ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, इट विल काउच फॉर नल पॉइंटर एक्सेप्शन। देखिए अभी ना पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, क्या कारण है जहाँ पे एक्सेप्शन आ सकते हैं, उसके बाद इसको हैंडल करने का तरीका देखेंगे कि ट्राई कैच, ब्लॉक, फाइनली, ये सब चीज़ें। लेकिन पहले एक्सेप्शंस है क्या, क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, पहले वो देखना जरूरी है। ठीक है, तो पहले अपनी बेस इसमें क्लियर कीजिए। सो एक बार इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, देखिए अभी ये रेफर कर रहा है नल को। अब अगर मैं इसकी जगह ये कर दूं, ठीक है, निरुपम, Yes, sir. निरुपम जी आप बताइए सर कि यहाँ पे अब लेंथ प्रिंट होना है या नहीं, क्या वैल्यू आएगा। अभी मैंने ये देखिए पहले ऐसे था, ध्यान से देखिए, पहले इस तरह से था, ठीक है, राइट। अभी Yes, sir. हाँ, अभी मैंने इसको ये कर दिया। सो अब जो है ये अभी भी एक्सेप्शन देगा। ट्राई टू गेस, जरूरी नहीं कि आप सही बताएं या गलत बताएं, गेस करने की कोशिश कीजिए कि अब क्या हो सकता है, लेंथ प्रिंट होगा या Maybe नहीं। exception होगा सर, होगा। पक्का, थोड़ा और टाइम लीजिए। जैसे ही हम कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं, मेमोरी में उसके लिए स्पेस एलोकेट हो जाता है। स्ट्रिंग में अगर हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसका तरीका ये है कि हम या तो किसी और स्ट्रिंग को उसमें असाइन करें या फिर स्ट्रिंग लिटरल को उस पर असाइन करें। लिटरल का मतलब डबल कोट के साथ। ठीक है, क्या आया, उसका लेंथ आ गया सर। हाँ, सी दिस नल एंड दिस नल इज डिफरेंट, दीज टू आर नॉट इक्वल। ओके, ये याद रखना है आप। चलिए कोई नहीं, गुड गुड ट्राई, वेल ट्राई। ठीक है, तो ये था नल पॉइंटर एक्सेप्शन। किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट जिसमें अभी कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं हुई है, वो नल को रेफर कर रहा है, अगर हम उसको उस पर किसी भी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। ठीक, आगे जाके आप कभी भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट बनाएं जहाँ पे आपको कुछ वैल्यू स्टोर करना हो, तो उस केस में आप नल को स्टोर करने से बचिएगा डेटाबेस में। क्यों, आप डेटाबेस में स्टोर तो कर देंगे, लेकिन लेटर ऑन अगर कोई उस वैल्यू को एक्सेस करेगा, ठीक है, और उसने उसको बिना चेक किए कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, देन द डेवलपर विल गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। ठीक है, क्या होता है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। बेसिकली इट्स ए कॉमन एक्सेप्शन इन जावा दैट इज थ्रोन व्हेन यू अटेम्प्ट टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग इनटू न्यूमेरिक फॉर्मेट। बेसिकली ये इनकम्पेटेबिलिटी से ही रिलेटेड है, बट ये ऐसा है कि आप किसी स्ट्रिंग को आप न्यूमेरिक में कन्वर्ट, देखिए इंटीजर वैल्यू को अगर आप स्ट्रिंग में असाइन करेंगे, इट्स ओके, नॉट एन इशू। बट अगर आप किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में असाइन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसका जो है जोन लिमिटेड है इंटीजर का,
0 to 9 वाला या फिर माइनस वैल्यू जो है, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में भी सारे नंबर्स होंगे विथ डेसिमल एंड ऑल। तो अगर आप इसको इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, देन इट विल शो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन लाइक दिस। आइए इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं। ठीक है, वी आर हैविंग वन स्ट्रिंग वेरिएबल। अच्छा, ये इंटीजर डॉट पास इंट क्या करता है? आस्फिया सर इनपुट का काम शायद। नहीं, ये बेसिकली इंटीजर डॉट पास इंट है। थोड़ा सा नेम से ही समझने की कोशिश कीजिएगा। इंटीजर वैल्यू आई थिंक। नहीं, इंटीजर डॉट पास इंट क्या करता है कि आप जो भी पैरामीटर इसको देंगे, यहाँ पे मैंने वेरिएबल दिया इनवैलिड पर, इसको ये इंट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इनपुट सर। हाँ, इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ये कॉमन चीज़ें हैं, ये आगे जाके बहुत यूज में आने वाले हैं आप लोगों के, इसलिए मैंने इसको पूछा अभी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे अगर ये सिर्फ 1 2 3 अगर मैं करूँ, मैंने सिर्फ 1 2 3 लिया, 1 2 3 इज एब्सोल्युटली number value, complete number value. There is no string is there inside this variable. Now if we'll run this, we'll get the value exactly what was stored in the string. But in case we add any character, so now what we are going to get, we will get number format exception. Means ये जो a value है या किसी भी तरह की स्ट्रिंग का कुछ भी दे दीजिए, आप इस तरह का कुछ भी दे दीजिए, तो ये जो है वो कंपैटिबल नहीं है, इसे जावा जो है वो किसी इंट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अभी एक चीज़ और, एक्सक्यूज मी सर। यस मालिनी बताइए। सर तो मतलब ये जो इंटीजर डॉट पार्स इंट है, ये सिर्फ एक वैलिड नंबर को ही इंटीजर पे कन्वर्ट कर सकता है। मतलब एक वैलिड अगर वो नंबर रहा और वो स्ट्रिंग में है तभी वो कन्वर्ट कर सकता है, यस, अदरवाइज नहीं करेगा। नहीं करेगा। ये ज़रूरत देखिए कहाँ पे पड़ती है इसकी, मैं बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट में मेरा कोई वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, जैसे मोबाइल नंबर कोई है, ठीक है, किसी भी रीजन से उसे स्ट्रिंग में स्टोर करने की ज़रूरत पड़ गई। लेकिन अब अगर मैं चाहता हूँ कि उसको उस पर मैं कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करूँ या कुछ भी, मे बी दिस एग्जांपल इज़ नॉट परफेक्ट, है ना, बट इसको बस इस तरह समझना है कि मेरे पास स्ट्रिंग में कोई वैल्यू स्टोर्ड है, उस पर मुझे कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन करना है, तो पहले मुझे उसे इंट में या फ्लोट में या डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इन केस ऐसी ज़रूरत पड़ गई अगर प्रोजेक्ट में, तो उस केस में इंटीजर डॉट पास इंट वैल्यू जो है वो यूज होती है। याद ये रखना है कि फ्रॉम 0 to 9 वैल्यू अगर है स्ट्रिंग के अंदर, मतलब इसके कॉम्बिनेशन का नंबर फ्रॉम 0 to 9, इसके कॉम्बिनेशन का कोई भी वैल्यू है, इट इज़ वैलिड। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा वैल्यू दे रहा हूँ जो अल्फ़ा न्यूमेरिक है, तो ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन देगा। अब एक काम करते हैं, इस पर ना डिफरेंट वैल्यू असाइन करके देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसको देखिए यहाँ पे माइनस पुट कर दिया है और मैंने सारे न्यूमेरिक वैल्यू रखे हैं। ठीक है, इट इज़ गिविंग परफेक्ट। अभी क्या होगा, कुछ गेस कर सकते हैं आप लोग? आप लोगों ने बेसिक में इसकी रेंज पढ़ी होगी इंट की। कुलदीप, यू वांट टू से समथिंग? नो सर। सर बेसिकली इंटीजर का जो लेंथ है, मतलब रेंज है, वो कर देगा। ठीक है, तो ये जो है इसने कन्वर्सन में ये इस केस में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सर जो ये इंटीजर डॉट पार्सेंट है, ये सिर्फ मतलब स्ट्रिंग्स, मतलब नंबर स्ट्रिंग्स को कन्वर्ट कर पाता है सर? नंबर स्ट्रिंग मतलब विद इन द किसी रेंज, न्यूमेरिक वैल्यू विद इन ओके द रेंज, दोनों चीज़ें याद रखना है।
ओके सर। सो सर मतलब और भी जैसे फ्लोट को भी ये नंबर में चेंज कर, इंटीजर में चेंज कर देगा, ऐसा कुछ सर? सॉरी, ये इस तरह की वैल्यू की फ्लोट बात कर अगर रहे हैं? वैल्यू, यस सर, इस तरह की वैल्यू की? यस सर। नहीं, उसमें भी ये करेगा कि इसको डेसिमल में लो, आप इसको इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये राउंड ऑफ नहीं करेगा। देखिए, ये कंप्लीट पे ऑपरेशन करने की कोशिश करता है, ये राउंड ऑफ नहीं करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि 1 2 3 को आपको असाइन कर देगा और ये 5 5 को छोड़ देगा, ऐसा नहीं करेगा ये। ओके सर। हाँ, ये राउंड ऑफ का काम नहीं करता है, ये करेगा तो कंप्लीट, नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, सो 2 3 चीज़ें याद रखनी है। कन्वर्ट करने का काम करता है न्यूमेरिक वैल्यू, बट विद इन द रेंज। रेंज किसका? जिस वेरिएबल में हम जिस डेटा टाइप में हम स्टोर करने का काम कर रहे हैं। इंटीगर क्लास के अंदर पासिंट मेथड जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू को लेता है और उसको कन्वर्ट करता है ये इंटीजर वैल्यू में। ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिकल करके देखना है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू इस पे असाइन करके देखिएगा। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन। आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन जो है वो बेसिकली आपका मेमोरी एरिया से रिलेटेड है। आपके जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज होते हैं जिसके ऊपर जेवीएम अपना परफॉर्म करता है ऑपरेशंस जिसकी हेल्प से। जैसे हीप स्पेस होता है, पर्म जेन होता है, ठीक है, गार्बेज कलेक्टर जो है वो भी इन दोनों पे ही परफॉर्म करने का काम करते हैं। आपका स्ट्रिंग पूल होता है हीप स्पेस में, ठीक है, एक स्ट्रिंग पूल हो गया, हीप, ये दो अलग अलग हो गया। पर्मजेन हो गया, पर्मजेन जो है बेसिकली क्लासेस को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो जब भी इस और हर एक को कुछ लिमिटेड मेमोरी एरिया असाइन होता है। ठीक है, लेकिन जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त सपोज कोई इनफाइनाइट लूप चल गया या कोई ऐसा लूप चल गया जिसने मल्टीपल टाइम रिकर्सन कर दिया और आपने रिकर्सन को स्टॉप करने का कोई कंडीशन दिया ही नहीं कि एट विच पॉइंट ये स्टॉप हो जाए, तो ये कंटिन्यूअसली अगर कॉल होते रहे तो एक टाइम के बाद ये क्या करेगा, मेमोरी में इतना स्पेस ले लेगा कि आपको आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, सो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ये एक अनचेक्ड एक्सेप्शन का एग्जांपल है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, कि आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन जो है वो किस तरह के एक्सेप्शन का पार्ट है। तो इट्स ए टाइप ऑफ अनचेक्ड एक्सेप्शन। इट अकर्स व्हेन JVM runs out of memory to allocate for new objects। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन जो आपके सामने आ सकते हैं वो याद रखना है आपको। अगर हीप स्पेस फुल हो गया तो ये इस तरह से एरर आएगा। ठीक है, पर्मजेन का हुआ तो पर्मजेन के बारे में बताएगा। ये देखिए, जैसे मैंने एक एरे लिया है और उसमें मैंने इस तरह से असाइन करने की कोशिश की है। ठीक है, रिक्वेस्टेड एरे साइज एक्सीड्स VM लिमिट। ठीक है, आप इस पे और भी डिफरेंट वैल्यू जो है वो आप गेट करके दे सकते हैं। सपोज आपने इस पे दिया 2000, तो आप इस तरह से दे सकते हैं कि कहाँ तक इसकी लिमिट जाती है। ठीक है, नो इशू, 20,000, नो इशू, लेट्स इंक्रीज दिस, नो इशू, let's increase it with some more। सी, एक कंपाइल टाइम में ही आपको बता देगा कि आउट ऑफ रेंज का है। ठीक है, सो हर एक के लिए जावा जो है ना ये एक बहुत ही परफेक्ट लैंग्वेज है। इसे बनाने वाले ने, जिसने भी इसको मतलब डेवलप किया है जावा को, बहुत सोच समझ कर किया है। इसमें कई सारे फीचर्स ऐसे ऐड किए गए हैं जो आपके प्रोग्राम को ऑटोमेटिकली स्टॉप करते हैं कहीं ना कहीं विद द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आया ही इसीलिए है ताकि इंड यूजर को पता हो कि लिमिटेशंस कहाँ पर है। अगर इस तरह की कोई वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ तो आई मे गेट एक्सेप्शन, एंड एक्सेप्शंस जो है वो अवॉइड किए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एक्सेप्शन। सिक्योरिटी एक्सेप्शंस बेसिकली क्या होता है, देखिए कि हम हमारे जो ओएस लेवल पे है या हम किसी ऐसे डिवाइस को यूज कर रहे हैं जिसने लिमिटेशन कर रखी है। सिक्योरिटी एक्सेप्शंस जो है वो डिवाइस टू डिवाइस डिपेंड करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम पे ये अगर ओएस का नेम परफेक्ट दे रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये सारे सिस्टम पे ओएस का नेम परफेक्ट दे। जिस सिस्टम पे इसको ये अलाउड नहीं है डिफरेंट वेरिएबल्स गेट करने का, तो उस केस में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपका वर्क ये रहेगा कि आप सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी में अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं, आप इसके डिफरेंट पैरामीटर ओएस डॉट नेम हो गया, इसी तरह से और भी कई सारे वैल्यू हैं, नेट पे आप सर्च करेंगे इजीली अवेलेबल है। तो डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ अगर करते हैं और आपका ओएस अगर इस तरह का परमिशन नहीं देता है इस प्रॉपर्टी को गेट करने का, देन आपको जो है वो एरर अकर हो सकता है। जैसे लोकल सिस्टम पे जनरली सिक्योरिटी एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि लोकल सिस्टम पे आप मैक्सिमम चीज़ें आप अलाउ कर देते हैं। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे जाते हैं जहाँ पे आपने प्रोडक्शन सर्वर पर रन किया है और वो लाइव पूरी दुनिया जिसे देख रही है, तो वहाँ पे कई सारी चीज़ें जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। तो वहाँ पे उस केस में जो है आप गेट करना है कि ओएस डॉट नेम। ये आगे जाके जब आप लाइव पे वर्क करेंगे ना तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, बट फिलहाल ये याद रखिए कि ये एरर आ भी सकता है आपके सिस्टम पे और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टैक ओवरफ्लो एरर। स्टैक ओवरफ्लो एरर मैंने आपको बताया कि जब भी आप कोई मेथड कॉल करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक स्टैक एरिया बनता है जहाँ पर उसके वेरिएबल या मेथड्स जो है वो स्टोर होते हैं, फिर वो पॉइंट कर रहा है कि उसके बाद नेक्स्ट स्टैक कौन सा हुआ है। ठीक है, तो जब इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं, आपने डेटा स्ट्रक्चर में स्टडी किया होगा इसका कि स्टैक जो है, अच्छा स्टैक जो है वो कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करता है इनपुट आउटपुट के लिए? सर लीफो प्रिंसिपल। लीफो, गुड। ठीक है, सो जब आप कोई मेथड कॉल करते हैं तो जेवीएम जो है वो स्टैक क्रिएट करता है। अब ये स्टैक कितना क्रिएट कर सकता है वो इसके मेमोरी एरिया पे डिपेंड करता है। अगर ऐसा हुआ कि एक स्टैक एक टाइम के बाद इसके पास और स्पेस नहीं बचा है, तो ये स्टैक ओवरफ्लो का एग्जांपल एक्सेप्शन थ्रो करेगा। एक बार इसको रन करके देखते हैं। देखिए अभी आप देखिएगा ये बिल्कुल लंबी लिस्ट बनाएगा ये। ठीक है, इसने ट्राई किया, जब तक स्टैक बना सकता था इसने बनाया, एक टाइम के बाद जो है इसने अच्छा अब ये देखते हैं कि इसने कितने नंबर पे जो है ये किया है। ठीक है, अब बताइए कि ये क्यों गायब हुआ? कोई मुझे बता सकता है? आप ध्यान दीजिएगा, फिर से देखिए, एक बार रन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रिंट करेगा ये बट एकाएक फिर गायब हो जाएगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसने प्रिंट किया, तो बेसिकली इसको जो है हम लोगों ने इनफाइनाइट लूप पे छोड़ दिया था। ठीक है, ये हर बार अलग अलग तरह का आपको जो है वो आउटपुट देगा। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैक ओवरफ्लो। जो मेन आपको याद रखना है वो बेसिकली अरिथमेटिक, null pointer exception, IO exceptions, array index of bound exceptions and the most important null pointer exception। ये 4-5 आपके मेन हैं, इनको आपको ज़रूर याद रखना है।
ठीक है। अच्छा, इससे बचने का तरीका क्या है? अगर आपका स्टैक ओवरफ्लो का केस है तो आप क्या करते हैं कि आप एक रेस कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, कि अगर मेरी एक वैल्यू कोई जो है वो अगर इससे ज़्यादा चला जाए तो मेरा रिकर्सिव मेथड कॉल ना हो। स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, बेसिकली ये एक रन टाइम एक्सेप्शन है। स्ट्रिंग क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि अगला जो आप नेक्स्ट लाइन है वो आपका इसी से रिलेटेड है। तो स्ट्रिंग को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? सृष्टि जायसवाल। सृष्टि जायसवाल, अच्छा नहीं है आज, कोई नहीं, ओके ओके। निरूपम। यस सर। स्ट्रिंग क्या होता है, किस कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? Sir, string means the alphabetical thing that we present in Java is called a string. मीन्स ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, राइट? Yes sir. ठीक है। तो अगर मेरा स्ट्रिंग जो है ठीक है, ओके, म्यूट कर लिए। तो अगर मेरा स्ट्रिंग जो है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है, मेरा स्ट्रिंग जो है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर अगर है तो उस कैरेक्टर में उस कैरेक्टर के हर एक का एक इंडेक्स होगा कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर 0th इंडेक्स पे एक कैरेक्टर है, फर्स्ट इंडेक्स पे दूसरा है, थर्ड पे सेकंड पे अगला है, थर्ड पे अगला है, फोर्थ पे उसका अगला है। तो अगर हम इस तरह से ट्राई करने की कोशिश करें किसी ऐसे इंडेक्स को जो उस स्ट्रिंग में अकर नहीं कर रहा है तो हम लोग गेट करेंगे क्या? स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जो है वो ये ट्राई करेगा। जैसे देखिए, एक मेरा स्ट्रिंग है, इसको यहाँ देखते हैं, ठीक है, ये मेरा एक प्रोग्राम है, यहाँ पे मेरा एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है। इस स्ट्रिंग वेरिएबल में मेरा जो है एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सेस इज 20। कैर एड जो है वो मेथड है स्ट्रिंग का जो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो कैरेक्टर वैल्यू है उसको प्रिंट करने का काम करता है, उसको आपको रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगर मैं 20th को गेट करने की कोशिश करूंगा तो 20th इंडेक्स तो इसमें है ही नहीं। तो जब 20th इंडेक्स इसमें अवेलेबल नहीं है और हम उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, देन व्हाट वी विल गेट इज स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। लेट्स रन इट। गेटिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज 20। अब अगर मैं इसे कर दूं, वैष्णवी, यस सर। मैम बताइए यहाँ पे क्या होगा? आप अरे रन होगा। रन होगा, ठीक है। अंशुमाली, यस सर। रन कर जाएगा या मैम इसमें कोई एरर आएगी, ये बताइए आप। सर रन करेगा। चलिए, इतने लोग अगर आप कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, रन कर गया, कोई एरर नहीं आया। अब मैं इसको कर रहा हूँ 13। अभी क्या होगा आसफिया? सर एरर आएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो ये था स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। Sir, I have a question. यस निरूपम, बताइए।
सर पिछला वाला क्वेरी में सर तो मात्र सिर्फ 10 लेटर्स ही था, तो वो 12 काउंट कैसे कर रहा था? कॉमा और एक्सक्लेमेशन दोनों को काउंट कर रहा था क्या? everything that is there inside the literal is part of that string. कुछ भी ऐसा जो आपने लिखा है डबल कोट के अंदर और असाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग में, वो काउंट होगा। देखिए मैं काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। 0th इंडेक्स 1 2 3 4 5 6, स्पेस भी काउंट हुआ, कॉमा भी काउंट हुआ और एक्सक्लामेशन भी काउंट होगा, ठीक है। ओके सर। जो भी आप लिखते हैं डबल कोट के अंदर वो उस पार्ट ऑफ स्ट्रिंग हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये देखिए बहुत बड़ा एक टॉपिक जो है खत्म हुआ। सब सोच रहे होंगे कि कब ये खत्म होगा, कब खत्म होगा। सो बेसिकली आपका जो टाइप ऑफ एक्सेप्शंस था वो खत्म हो गया। अब हम लोग एक नेक्स्ट स्टेज पे आ गए हैं, ये कि एक्सेप्शंस तो हम लोगों ने देख लिया कि जनरेट हो रहे हैं, बट इन एक्सेप्शंस को अब हैंडल कैसे करना है, क्योंकि शोइंग एक्सेप्शन ऑन कंसोल इज नॉट ए गुड आइडिया। उसको हैंडल करना है सो दैट आपका प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप ना कर जाए, या तो उसका कुछ करेक्टिव एक्शन लेना है और उसके बाद आगे का कोड जो है वो रन करता रहे, ठीक है, या फिर कुछ मैसेज डिस्प्ले करके तब रिटर्न होना है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए बैंक रिलेटेड कुछ आप परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशंस, ठीक है, 2-3 जगह अपडेट होना है, तो अगर एक्सेप्शंस आया तो एक्सेप्शन के बाद आपको रोल बैक करने का भी होना चाहिए प्रोविज़न, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग इसको एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं कि रोल बैक करने के पहले ही कंट्रोल ना बाहर आ जाए। प्रोग्राम में अगर एक्सेप्शन आया है, कंट्रोलर अभी भी उस प्रोग्राम के अंदर ही रहे और जो हमने एक्शन परफॉर्म किए हैं वो वापस रोल बैक करके उसके बाद मैसेज डिस्प्ले और तब कंट्रोलर जो है वो उस प्रोग्राम से आउट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली तरीका यही है कि जैसे ही एक्सेप्शन हिट किया है आप उसको थ्रो कीजिए, कैच कीजिए, हैंडल कीजिए, ठीक है। देखिए ये और कैसे, देखिए इसके 2 अप्रोच बेसिकली होते हैं, ठीक है। या तो आप ट्राई कैच ब्लॉक यूज कीजिए, इट्स ए स्मॉल टी, ठीक है, स्मॉल टी एंड स्मॉल सी, नॉट कैपिटल टी एंड कैपिटल सी। लिखते वक्त ऑटोमेटिकली उसने सेट कर दिया है ये ड्राइव में। सो ट्राई कैच ब्लॉक आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप एक्सेप्शंस को थ्रो कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है। सो आइदर बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड और बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक आप जो है वो एक्सेप्शंस को हैंडल कर रहे हैं। क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू हैंडल द एक्सेप्शन इन जावा, what are the different ways to handle exception in Java? Then you have to say there are two, it can be done in 2 ways. First one is by using try catch block and the next one is using throw. Immediate आपके पास next question आएगा कि throw and throws, ठीक है। तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, throw is different thing and throws is different thing। वो हम लोग देखेंगे आगे जाकर कि throw and throws में क्या डिफरेंस है। इन ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, ये बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है कि थ्रो एंड थ्रोज में क्या डिफरेंस है। तो आपको याद रखना है कि जो द डिफरेंट वे टू हैंडल द एक्सेप्शन वी आर यूजिंग थ्रो, ठीक है। सो दिस इज द सिंटेक्स। अब इसमें देखिए आपके सामने स्क्रीन पे ट्राई तो है बट मल्टीपल कैच है, तो ये मल्टीपल कैच क्यों आया, क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? सर एक से ज्यादा एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। और एक से ज़्यादा एक्सेप्शन को हैंडल करने की ज़रूरत क्यों पड़ी अगर मेरा एक पे ही काम चल रहा है तो? देखिए जो हमारे गुड ट्राई, ठीक है। देखिए अगर हम लोग कोई कोड लिख रहे हैं तो एक्सेप्शंस हमारे अरिथमेटिक टाइप के हैं तो वहाँ पे रोल बैक मेथड कुछ अलग हो सकता है। अगर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है हो सकता है रोल बैक मेथड वहाँ अलग हो। और हर चीज़ के लिए अगर जनरल रोल बैक मेथड है तब हम सिर्फ एक्सेप्शन लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है मालिनी? यस सर। हाँ, बेस्ड ऑन द एक्सेप्शन if we are doing different rollback operations then we'll use multiple catch block, and if the general rollback operation is going to be performed then the single exception class is or single catch block is enough। ये डिफरेंस है, ठीक है।
तो मल्टीपल कैच एक्सेप्शंस बेसिकली क्या होता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए आप मल्टीपल कैच लगाते हैं। हर एक कैच ब्लॉक जो है वो एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन टाइप को डिनोट करेगा और बेस्ड ऑन दैट वो रोलबैक मेथड अपना प्लान करेगा। जावा जो है वो क्या करेगा, जब भी एक्सेप्शन अकर होगा तो अगर आपने मल्टीपल कैच दे रखा है तो ऑर्डरिंग में जो उसकी ऑर्डर है, हम लोग आगे ऑर्डर भी देखेंगे, ठीक है, एक्सेप्शन हायरार्की जो होती है, एक्सेप्शन क्लास की जो हायरार्की होती है, हम लोग देखेंगे कि वो जिस जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, फ्रॉम टॉप टॉप देखते जाएगा कि ये किसके अंदर आया है और जो उसको द बेस्ट सूटेबल मैच करेगा वो उस कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, सारे को नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने मल्टीपल लगाया है तो सारे कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होंगे। द कैच ब्लॉक के अंदर जो आपने एक्सेप्शन क्लास दिया है, ठीक है, जिस टाइप का एक्सेप्शन दिया है, जो उसको बेस्ट सूटेबल मैच करेगा केवल वो रन करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आपको एक यहाँ देखिए एक नंबर एरे है, डिवाइड बाई 0 का एग्जाम्पल दिया है मैंने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड बाई 0 का एग्जाम्पल है, इसमें मैं जिनसे पूछूंगा प्लीज़ वही जवाब दीजिएगा। ठीक है, आई एम श्योर कि इसमें आप लोग कई लोग गलत करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने डिवाइड बाई 0 पहले भी पढ़ रखा है। अदिति, सही हो गलत हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप लेकिन ट्राई कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन आएगा? सर पहले तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आना चाहिए, क्योंकि इसमें एरे का साइज आप 3 स्पेसिफाई किया और इसमें नंबर में इंडेक्स में आप 5 मांग रहे हैं। और दूसरा एरिथमेटिक एक्सेप्शन आना चाहिए, क्योंकि नंबर को आप 0 से डिविजिबल कर रहे हैं, जो कि अनडिफाइंड होएगा। मैम वंस अगेन ओनली वन कैच ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, उसके बाद वो आउट हो जाएगा। एक ही कैच करेगा, कोई एक करेगा। चलिए आप सपोज आप यहाँ पे जो है वो इंटरप्रेटर हैं, आप बताइए अगर जावा इंटरप्रेटर आप हैं तो आप इसको कौन सा एक्सेप्शन देकर बाहर कर दीजिएगा? एक सर बताना जिसका है। प्रायोरिटी सर एरिथमेटिक एक्सेप्शन। एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है मंतशा। यस सर। कौन सा एक्सेप्शन आना है इसमें? अरिथमेटिक, एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड और द जनरल एक्सेप्शन? सर क्या बात है, कमाल कर दिया। जहाँ मैं सोच रहा था कि सारे लोग गलती करेंगे वहाँ सारे सही हो गए। आप लोग टफ क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, इजी क्वेश्चन का ही नहीं देते हैं, ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया मेरे। चलो कोई नहीं, गुड, ठीक है, वेरी गुड। इसमें जो है अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगा। अच्छा, अब अगर मैं इसको कर देता हूँ, आसफिया आपको बताना है, मैंने इसे कर दिया 3, अभी क्या आना है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। नहीं, यहाँ तो एरे इंडेक्स और 2 बाउंड आ गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे 0 1 2, फिर 3 कहाँ से आया? एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोग टफ क्वेश्चन का आंसर देते हैं और बेसिक क्वेश्चंस का नहीं देते हैं। बेसिक कंट्रोल कीजिए, ठीक है, बेसिक को थोड़ा फिर से पढ़िएगा। एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है। खैर कोई नहीं, गुड। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसमें लोग गलत करेंगे, बट आप लोगों ने सही किया, इट्स गुड। ठीक है, तो ये था आपका कि अगर आप मल्टीपल कैच ब्लॉक जो है आप रखते हैं तो उसमें द मोस्ट सूटेबल जो रहेगा वो गेट करेगा और उसके बाद वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे मोस्ट सूटेबल क्या था, देखिए आपका पहला एक्सेप्शन यहीं पे आ जाएगा, डिवाइड तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, सो जैसे ही ये एक्सेप्शन आया तो पहला कौन सा आया एक्सेप्शन?
एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड, तो एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड को इसमें सर्च करेगा। जैसे ही एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड इसे मिल गया, ये वापस ये इस मैसेज को प्रिंट करेगा, देन द कंट्रोल विल बी आउट फ्रॉम दिस प्रोग्राम। वही अगर मैं इसको जो है वो ये कर दूँ, ठीक है, और एंड आफ्टर दैट इफ विल रन देन विल गेट अरिथमेटिक एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है परफेक्टली वैलिड है, एंड एरर किस वजह से आ रहा है, ये इस सेकंड पार्ट की वजह से। सो नाउ अरिथमेटिक एक्सेप्शन विल कम। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं ये हटाऊं और ये मैं यहाँ पे लगा दूं, क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, इसने इमीडिएटली क्या कहा कि ये दोनों जो है अब वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि अनविशेबल कोड हो गया। वाई? बिकॉज द एक्सेप्शन इज एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सेप्शन दैट मे अकर इन जावा। तो जैसे ही जो भी एक्सेप्शन आएगा वो सब जो है इस जनरल एक्सेप्शन के हायरार्की के नीचे है, ठीक है, मतलब बिलो लेवल पे है। तो इसलिए बाकी जगहों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या सीखा आपने? अभी मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि द मोस्ट सूटेबल के पास आएगा और फिर वो वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे वो एक और चीज़ सर्च करेगा कि कहीं पे मेरा कोई जनरल एक्सेप्शन तो नहीं है। अगर मेरा वो, यानी कि वो ऑर्डरिंग भी चेक करेगा। अभी किसी ने आई थिंक ऑर्डरिंग का भी नाम लिया था आप लोगों में से किसी ने। गुड, उनको नॉलेज Yes, sir. थी आई थिंक ऑर्डरिंग की। तो ऑर्डरिंग जो आपने वर्ड यूज़ किया ना, ये वही है कि जो टॉप ऑर्डर में है अगर वो मिल गया पहले, तो पहले वो एक्सेप्शंस को यूज करेगा। ठीक है, विकास यादव जी का मैसेज आया, नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई नहीं, जितना देखिए आप गेट कर सकते हैं नॉलेज उतना गेट कीजिए। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है उसमें तो खैर कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो यू गेट मल्टीपल कैच एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज थ्रो एंड थ्रोज। ठीक है, स्टूडेंट आगे कंटिन्यू करना है। सर यस मैम, बताइए। सर व्हाट अबाउट जेनरिक एक्सेप्शन? जेनरिक एक्सेप्शन मीन्स, देखिए ये जो एक्सेप्शन क्लास है ना, जब मैं आपको हायरार्की बताऊंगा एक्सेप्शन की, बेसिकली एक हायरार्की होती है कि सबसे टॉप पे एक्सेप्शन हो गया, ठीक है, उसके नीचे जो है वो आईओ एक्सेप्शन या रन टाइम एक्सेप्शन या अरिथमेटिक या एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड। एक कल में चार्ट आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन। जब भी आप नेट पे सर्च करेंगे हायरार्की ऑफ एक्सेप्शंस तो आपको एक चार्ट दिखेगा। तो वो उस सीक्वेंस को सर्च करता है, तो जो उसमें सबसे टॉप लेवल पे है उसको जेनरिक एक्सेप्शन का नाम दिया गया है। जेनेरिक का मतलब हो गया जो सब पे एप्लीकेबल हो, सब के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, जेनरिक आगे जाके ना हम लोग जेनरिक क्लासेस भी स्टडी करेंगे, आई थिंक आपके लिस्ट में है, मैंने देखा है। ठीक है, तो जेनेरिक का मतलब जो सबके लिए एप्लीकेबल हो, और स्पेसिफिक का मतलब हो गया कोई एक। जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है वो केवल अरिथमेटिक वाले के लिए कॉल होगा। अगर मैंने अरिथमेटिक एक्सेप्शन दिया है और अगर मेरा अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर ही नहीं हुआ तो वो कभी इसके अंदर नहीं जाएगा जो अरिथमेटिक एक्सेप्शन का कैच ब्लॉक है। लेकिन किसी भी तरह का एक्सेप्शन हुआ और अगर मैंने ये लास्ट वाला जो एक्सेप्शन कैच है ये दे रखा है तो इसके अंदर आएगा ही आएगा, क्योंकि ये जो है ओवरऑल सभी के टॉप लेवल पे है हायरार्की में। एक्सक्यूज मी सर, यस कुलदीप, बताइए। हम पूछ रहे थे सर, जैसे कि अगर हम लोग कभी ट्राई एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं और हम लोग को कोई पर्टिकुलर एक्सेप्शन याद नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसके जगह में जेनरिक एक्सेप्शन लगा के मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज के डेट में वैसे तो ये रॉन्ग यस सर। प्रैक्टिस होती है, रॉन्ग प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, बट हाँ देखिए, अगर आपने जेनरिक एक्सेप्शन दे दिया तो आपको जो मैसेज अकर होगा आप उससे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि किस तरह का आया है, इनपुट आउटपुट आया है या एरर इंडेक्स की वजह से आया है, इसीलिए स्पेसिफिक दिया जाता है। हाँ, लेकिन अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर आपको कोई भी एक्सेप्शन याद नहीं है या फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आपके कोड में किस तरह का एरर आ सकता है, तो आप एक जेनरिक एक्सेप्शन तो आप दे ही दीजिएगा, यानी कि उसमें वो हैंडल हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सो स्टूडेंट नेक्स्ट कंटिन्यू करना है अभी।
क्योंकि मुझे अभी आपसे 5-7 मिनट और चाहिए आपके सेमिनार के टॉपिक पर डिस्कशन के लिए। सर सेमिनार टॉपिक ओके, ठीक है। सो विल स्टडी अबाउट दिस टॉपिक एडवांस जावा टुमारो, ठीक है। विल ट्राई टू फिनिश दिस एडवांस जावा टॉपिक एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन सिर्फ मेरे ख़त्म करने से नहीं होगा। इस टॉपिक को आपको घर में उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो चीज़ जिस समय पढ़ाई जा रही हो उसको उसी समय ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। ख़त्म करने का तरीका क्या है? मैंने जो पढ़ाया उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके बाद इंटरनेट खुला है, सबके पास अवेलेबल है। इंटरनेट पे जितना उसको सर्च कर सकते हैं, जितना उसका रिलेटेड प्रोग्राम बना सकते हैं वो बनाइए। अदरवाइज आज के डेट में जनरल